the model performance, right? Now there were around 3 parameters. One was temperature, top K and top P, right? What's the purpose of temperature? The purpose of temperature to control the creativity of prompt or answer. Stand up please. Speak a little louder so I can hear. Sir, the purpose of temperature to control the creativity of response. Creativity of response. Got it. Now, if I don't want a creative response, right? Ideally, what will be the value that I should set for the temperature and pass it to the model? I need complete sentence in English so that you guys can practice as well. The value to be set to Stand up, stand up, stand up. देखो, जवाब देने का एक तरीका है ना, आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन आप खड़े होकर अगर अपनी जगह पर तरीके से बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और मुझे पता भी चलेगा यार कौन जवाब दे रहा है। बैठे बैठे तो बहुत सारे बोल रहे होते हैं, सही है? बोलो। The value should be set to 0.1. The value should be set to 0.1. Okay. And if I need like a moderate creative response, not too much creative, then what should be the ideal value? 0.5. Like 0.1 0.5. moderate करेंगे. 0.5. 0.5 straight Okay. forward थोड़ी ना चाहिए. Does anyone have objection on that answer? Does someone think like this answer is wrong? I think so, it's right. All of you agree on that? Yes, sir. That 0.5 should be set as a moderate value for the temperature. Yes, sir. All of you agree? Can you please raise your hand? And the other ones who are not agree on that, can you please guys raise? Looks like you guys are not very comfortable, right? So why I'm not able to see many hands. Like answer if you guys agree. I saw like a couple of hands raised, but if I answer like if you guys are not agree, raise your hand. I don't see. Not agree, sir. Not agreed. Okay, ma'am, can you please answer? What should be the right answer then? Yes, sir. The temperature will be 2 because we want a creative answer. The temperature will be a Temperature will be 2. 2 or 0.2. 0.2. What's the maximum value of temperature? 2. Agreed. What's the maximum value of temperature? 1. 2. It depends on the LLM. Okay. So which LLM supports the temperature max value as 2? Gemini. Yeah. Right? Okay. Now, I need someone to explain me like what's the purpose of top P. Top P. What's the definition? खामोश क्यों हो गए? उर्दू में बोलो। जी भाई। Top P is a set of some words which have more probability of are given from More probability of occurring, right? yes exactly. Then Are given from which will be set throughout the which will be said with temperature. with temperature. Okay. Now, usually we have seen as per the documentation, we have seen there are a couple of combination of like conservative response, creative response, right? And then a 2 creative response, right? So there are 3 combinations. If you have read the documentation, what's the minimum value we have set for the top P in order to obtain a conservative response? 40. Don't know. 14. Okay, so for a conservative response, what should be the value of top P that should be set along with temperature, maybe 0.2 or 0.1? 0.2 में 30. Temperature is 0.1 or 0.2, right, for a conservative response. Now, along with that, what should be the value of top P in order to get a conservative response? 0.95.
Really? It should be 0.9. Okay, got it. 9 का Okay, now we will discuss, like, we will revise the prompting techniques, right? So basically, in the last class, we covered like zero shot, single shot, and few shot prompting, right? If I'm talking about few shot prompting, what's the ideal number of example I should be giving in my prompt? 3 to 5. What? Minimum 3 and Minimum 3, maximum 5, 3 to 5, right? Okay. If I'm saying like zero shot prompting, right? Can you give me an example where you are going to use this technique? 2 plus 2. 2 plus 2? Okay, we will think logically. Will you ever go to LLM or an AI model and then you will ask what is 2 plus 2? Will you ever go to an LLM and ask 2 plus 2? Yes? Yes. Why? Don't you know what's the value of 2 plus 2? Give a real world scenario, right? Real world example, so at least you guys can understand what does that mean when you should be using that zero shot prompting. What is the weather today? Can someone give a better example? What is the weather today? What is the weather in Karachi? What is the weather in Karachi? Yes, that's a good example. Any other? What is the recipe of biryani? What is the recipe of biryani? No, sir. No. You might need to use another technique, right? The reason is Give few shots. there are multiple types of biryani. There are multiple recipes where biryani taste can differ. So you probably might need to provide some additional context, some additional example, right? Maybe an image file, maybe like the context of which region you are talking about. If you remember, if you have attended the last class, you were discussing like if you ask ChatGPT to provide a recipe for biryani, GPT can provide you recipe for Lahori biryani, which is not a biryani, which is for a pulao, right? So that's why zero shot prompting in this case might not work, right? Zero shot prompting can work. Let's suppose if I am going to GPT and might ask like, what's the definition of science, right? So in that case, I don't need to provide the context for the science. GPT knows that, right? I can ask, okay, what's the definition of accountant? Right? What's the definition of tax, right? Now in that case, I don't need to provide an example to basically align GPT in order to provide me relevant response, right? Definition is definition. It's a globalized thing, right? Got my point? Yeah. Then coming towards few shot prompting, right? In which case you think that the few shot prompting should be used? What should be the use case? Sir, when we need to define some more context about our question. And when that will happen? Sir, What's the exact scenario? What's the exact recently use I case? faced the problem. I asked ChatGPT, what is Pamplona.com? ChatGPT asked me which Pamplona.com you are asking about. Give Okay. me some other context. So Mhm. when we asked for some thing like which have no clear context, so we have to don't give a single shot prompt. Okay. Anyone else? इतनी अच्छी नहीं चौथी को असल में इंग्लिश में गुस्सा नहीं हो रहा मुझसे, बोल नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ। वो जो टेढ़ी मेरी एग्जाम्पल होती है ना, वो इंग्लिश में रियल टाइम पे ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एनीवन एल्स? I need an example, a use case where you guys are going to implement few shot prompting. A proper use case. I got one from, what's your name? Sattar. क्या? Sattar. 70 WhatsApp कर देना यार। Sorry. अभी Can anyone from, okay. Yes, class coordinator, can you give an example? You have attempted the quiz as well. कोऑर्डिनेटर तो तुम भी हो And why are you sitting very behind? Can you please come in front? If you are sitting with your friend, you can come up with her, right? That's not a problem. तो आचार्य भी तो इंग्लिश में बात कर रहा है प्लानिंग उर्दू में चल रहा है क्या शाहरुख का उर्दू में चल रहा है आपको भी सुन वो इतना अच्छा हमारा भी उर्दू में चल रहा था पहले
Yes. Can you please explain or give an example of few short prompting? सर जैसे few short में हम इस तरीके से दे सकते हैं कि इंग्लिश नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को दे दिया। जैसे हमें यूजर का फीडबैक वगैरह चाहिए तो उसलिए हम यूज कर सकते हैं उसे few short में। यूज़र का फीडबैक, अभी तक एग्जाम्पल में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी सी दमदार एग्जाम्पल ने सोच के बताएं। और मैं अभी थोड़ी देर बाद असाइनमेंट दूंगा, हम 7 बजे एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये जो चीज़ जितना भी कंटेंट अभी पढ़ा है इसकी प्रॉपर आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब चाहे आप ग्रुप में कर लें, इंडिविजुअल कर लें, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर वो आपको करके मुझे दिखाना है, सही है? तो हम वो 7 बजे एक्टिविटी शुरू करेंगे। रिवीजन करवाने का मकसद ये कि आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए और फिर हम उसको लेके चलें, ठीक है? उसकी बेस पे एग्जाम्पल्स करें। नहीं कर पाऊंगा। भाई खाना खा रहे हैं आप, मसला कुछ भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, सही है? थोड़ी देर बात खा लीजिएगा, अभी कब आ रही है? ठीक है? कोई देगा एग्जाम्पल यूज़ केस? मेरा बंद हो गया। चलेगा। नहीं दे रहे, चले सही, कोई बात नहीं। अच्छा, देन we basically discuss like 3 concepts, right? Few short On how to, there are like some techniques and some maybe could be the type of the prompt that we are writing, right? So there was system prompting, contextual prompting and role prompting, right? Let's start with the contextual prompting. What does it mean and how does it differ from the system prompting? What is contextual prompting and how does it differs from system prompting? सिस्टम प्रॉम्प्टिंग और कौन सी प्रॉम्प्टिंग? तुम मोबाइल चला रहे थे देखो। Sir, please, can you ask me question? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ तेज बोल कोई मतलब नहीं। खड़े होके Should I randomly point someone? यस सर। रिपीट द क्वेश्चन सर। 1, 2, 3, 4, 5. Fifth, first seat. You. Yes. What is contextual prompting? कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्टिंग के एक तरीके से बैकग्राउंड के मॉडल को जैसे कि किसी का बैकग्राउंड जैसे है, जैसे अगर अभी आप Can you try in English? At least try. Even if it's tutti booty. Even. conceptual prompting is an environment that an environment background in AI Try. to AI model. Okay. And now Urdu version? Mm-hmm. उर्दू वर्जन में Can I speak? Yes, yes, Urdu version. Yes. कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो AI मॉडल्स को हम जैसे हर टाइम स्टेप में ये होता था कि हम लोग एनवायरनमेंट बनाते थे, एनवायरनमेंट सेट करते थे। ऐसे ही इसके अंदर ये होता है कि बैकग्राउंड आपको सेट करना होता है। जैसे अगर क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ का वेदर क्या है तो आप अभी यहाँ के वेदर के बारे में बताओगे, लेकिन अगर आप एक मिनट, दोस्त जो बीच में बैठा हुआ है, जो फ़ोन चला रहा है, दोस्त खड़े हो गए अपनी जगह पे? जी, हाँ। जो उन्होंने कहा वो रिपीट करना ज़रा। अच्छा, और उन्होंने एग्जाम्पल क्या थी? बैकग्राउंड एग्जाम्पल कुछ समझा रही थी, वो क्या थी? तो जितनी थी उतनी बताते हैं, कंप्लीट थोड़ी करनी। अच्छा, दोनों बैठ जाओ। भाई किसी को सही आता है? मुझे लग रहा है उर्दू में बोलना पड़ेगा। किसी को सही से आता है कि कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब था? जी। contextual prompting basically means what the AI should talk about based on the background and information provided. Okay. Let's hold on it for now. If it's the background knowledge or the background information, then how does it differ from the system prompting? In system prompting, we set a role of what the AI should do and how the Okay. AI
Just a second. Can anyone validate if this is correct or wrong? Yes, it's correct. Who is saying it's correct? खड़े रहना 2 मिनट. और कोई बता रहा है? जो अभी सिस्टर ने कहा वो सही है या गलत है? सही है. आप सही कह रहे हैं ना? खड़े रहे यार, आप खड़े हो. अबे फिर रुक जा भाई, खड़ा हो. क्यों जल्दी है? अभी मैं पूछूंगा ना क्यों सही है. और कोई? कौन कह रहा है इन्होंने जो कहा सही है? भाई जवाब तो दो यार. आप लोग इंटरेक्शन नहीं करोगे तो क्लास आगे कैसे चलेगी? आप बताएं इन्होंने जो बताया वो सही है या गलत है? जी छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं पूछा आपसे. मैंने सिर्फ इतना पूछा है जो उन्होंने डेफिनेशन बताई है क्या वो सही लग रही है आपको या गलत लग रही है, या आपने सुना ही नहीं? याद है पढ़ जाए, कोई मसला नहीं. दोस्त तुमने सुना है और तुम्हें सही लग रहा है, सही है? ऐसा ही है ना? अब तुम मुझे ये बताओ, उन्होंने कहा कि हम सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में रोल डिफाइन करते हैं, ऐसे ही है? तो हमारी भी तो रोल प्रॉम्प्टिंग में क्या फ़र्क है फिर? अगर सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में रोल है तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग जो है वो रोल जो होता है उसका परमानेंट रोल होता है. वो एआई को हम पहले असाइन कर देते हैं, वो उसी लिहाज से बिहेव करता है, वो अपना मोटिव चेंज नहीं करता. अच्छा रुक जा भाई, इससे पहले बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जाए. किसी और को बोलते हैं वैलिडेट करे. कोई वैलिडेट करेगा? कोई वैलिडेट करेगा इस चीज़ को कि सही है या गलत है? गलत है सर. कौन कह रहा है गलत? तुम कह रहे हो ना, तुम खड़े हो, ज़रा मुझे जवाब दो. अभी मत बोलना कुछ. अच्छा चलो तुम इनको समझाओ क्या चीज़ गलत है. जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है वो हम देते हैं किसी AI को, किसी ऐसे हम टूल बनाते हैं या हम एक AI बना रहे हैं उससे देते हैं. जो हमारा रोल प्रॉम्प्टिंग होता है वो हम उसको एआई मॉडल्स को देते हैं. और ये कॉन्टेक्स्ट दोस्त लास्ट क्लास अटेंड की थी वैसे तुमने? नहीं की थी ना, तभी तुम वर्ड पे वर्ड मारे जा रहे हो. ठीक है कोई मसला नहीं, बैठ जाओ. तुम भी बैठ जाओ. आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी तो फिर इतना बड़ा वर्ड तो नहीं हो सकता. ठीक है देखिए रोल यार, अगर मैं रिपीट कराऊंगा तो नया का पढ़ाऊंगा. अच्छा बैठ जाए. सिस्टम कॉन्टेक्चुअल एंड रोल प्रॉम्प्टिंग, सही है? अब वापस समझा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ध्यान से सुन लेना. सिस्टम प्रॉम्प्टिंग हम उस पर्टिकुलर सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, सही है? उस एक हमने बात की थी बेसिकली एजेंट एसटीके के लिहाज से. हमने कहा था कि यार एक एजेंट है, सही है? उस एजेंट में हमने कोड देखा था और हमने देखा था कि उसको इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है. लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? सबसे पहले सिस्टम के अंदर मल्टीपल एजेंट्स हैं, ऐसा ही है? एजेंट एसटीके की अगर मैं बात करूँ, ये वो भी भूल गए तो याद है ना? एजेंट एसटीके में मल्टीपल एजेंट्स हैं. एक एजेंट के पास इंस्ट्रक्शंस का एक पैरामीटर है, सही है? उस इंस्ट्रक्शंस में हम क्या पास करें? उस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम उसका रोल नहीं डिफाइन कर रहे हैं. क्या पास कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, प्लीज हेल्प यूजर विद कोड स्ट्रक्चर बग्स एंड इश्यूज एंड डू नॉट रिप्लाई फॉर एनीथिंग एल्स. इसमें रोल कहाँ सेट हुआ? कहीं रोल सेट हुआ? मैंने कहा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, प्लीज रिप्लाई यूजर विद दिस क्यूरी. अब हम उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं. असिस्टेंट तो जनरल जनरलाइज चीज़ है ना. मैं जब उसको कहूँगा एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्ट एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्ट एज अ CFO, एक्ट एज अ CTO, वॉट एवर, ये अब मैं उसको प्री डिफाइंड रोल दे रहा हूँ. एक्ट एज सीनियर UI/UX डिज़ाइनर रोल असाइन कर दिया. एक्ट एज अ जनरल फिजिशियन, बात समझ आ रही है? ये मैं क्या कर रहा हूँ? रोल असाइन कर रहा हूँ LLM को. यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट कुछ भी हो सकता है यार, सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के और के लिए भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट हो. बात समझो कि सिस्टम इंस्ट्रक्शंस रोल डिफाइन नहीं करता. सिस्टम इंस्ट्रक्शन ये डिफाइन करता है कि जो मॉडल है या जो LLM है या जो एजेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प करेगा और उसकी बाउंड्रीज क्या है और सर्टेन चीज़ में वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा. सही? जब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा उसमें रोल डिफाइन करूंगा तो क्या मैं कभी ये कहूँगा एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यूज लैपटॉप टू राइट कोड? एक बंद कर दे बस. कभी मैं ये कहता हूँ? मैं क्या करूँगा? मैं सिस्टम इंस्ट्रक्शन में इसको कहूँगा यू हैव दिस गेट वेदर
टूल यूज इट टू प्रोवाइड आंसर टू यूजर। ये कहाँ डिफाइन हो रहा होता है, कहाँ डिफाइन हो रहा होता है ये? अगर मैं जो ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो एजेंट है या मेरा LLM है वो टूल यूज करे, तो कहाँ जाके डिफाइन हो रहा होता है? सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में ये नहीं करता हूँ कि एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बात समझ आ रही? सिस्टम यानी LLM क्या करेगा, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज है, क्या क्या उसके पास एक्सेस है, इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट। सही है? तुम्हारी तार हिली। और आपके पास देन रोल प्रॉम्प्टिंग है। रोल प्रॉम्प्टिंग किसकी तरफ से हो रही है? यूज़र एंड से। यूज़र जो क्यूरी प्रोवाइड कर रहा है उसमें जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है उसको रोल स्पेसिफिक कर रहा है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की तो हमने उसमें बात डिस्कस की थी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अगर आज हम इस टॉपिक तक पहुँचे। तो रोल प्रॉम्प्टिंग अलग से एक टेक्निक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने अभी डिफाइन कर दिया। अब बारी है कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग की। कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था, बताया वो क्या होता है। क्या थी? कॉन्टेक्चुअल पढ़ा है। यूज़र का जो डिटेल है वो तो हर एजेंट के पास जाएगी, सही है, ताकि वो यूज़र की स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से उसका रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगर कंप्लेन एजेंट है तो वो क्या करेगा, उस यूज़र का यूज़र नेम और ID लेके उसके अगेंस्ट में कंप्लेन जनरेट करेगा। तो अब जो ये मैं यूज़र का सेशन डेटा जो पास करूँगा ये कहाँ चालू हो होगा? गई। स्पेसिफिक टू एजेंट या अक्रॉस दी सिस्टम होगा? हो गया चालू। अक्रॉस दी सिस्टम होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली है कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग, या ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट में आती है। जो कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस दी सिस्टम सेट होता है, पूरे सिस्टम वाइड वो चीज़ पास होती है। समझ आ रही? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पास होती हैं। एक तो मैंने यूज़र डेटा बता दिया, लेकिन बैंक की अपनी कुछ पॉलिसीज़ भी होंगी। लेट्स सपोज अगर इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लें, सही है, उसकी पूरी पॉलिसी गाइड होती है। अगर मुझे वो इंश्योरेंस सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एजेंट है, एक जो कंप्लेन को हैंडल कर रहा है, एक क्लेम को हैंडल कर रहा है, एक नए यूज़र को ऑनबोर्ड कर रहा है, तो अब उनको अगर बैंकिंग की इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस का डेटा पास करना है या पॉलिसीज़ का डेटा पास करना है, तो वो अक्रॉस दी सिस्टम जाएगा ना, एक एजेंट के पास तो नहीं पास करो, ठीक है, क्योंकि हर एजेंट को उससे कुछ ना कुछ डेटा चाहिए हो सकता है, ठीक है। वो डेटा एज अ कॉन्टेक्स्ट पास होगा, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। बात समझ आ रही है? उस चीज़ के लिए जो मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उसको समझाने के लिए जो चीज़ करूँगा, उसका डेटा जिस तरीके से पास करूँगा, ये हमारे किस में आ रहा है? कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट। इसमें किसी का सवाल है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था चेन ऑफ थॉट्स। ये कहाँ पे क्या होता है? यूज केस और एक एग्जाम्पल पता है, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल हो। और देखो मैथ वाली एक एग्जाम्पल होगी, इसके अलावा सोचो, बताओ। क्या चीज़? इसके अलावा कुछ बताएं? मेरी एग्जाम्पल ही छपवा दी, कुछ और बताएं। बन सकती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से पूछा जाए तो वो भी चेन ऑफ थॉट अप्लाई कर देगा, उसके ऊपर भी COT उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। अगर उससे पूछा जाए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पूछा जाए, ठीक है, चलिए काम करते हैं। अब आप लोग को वन शॉट, आप लोग को सिंगल शॉट, फ्यू शॉट, COT, कॉन्टेक्चुअल, सिस्टम और रोल प्रॉम्प्टिंग, ये सारी टेक्निक्स पता है, सही है। अब आप लोग या तो अपने आप को ग्रुप में अलाइन कर लें या इंडिविजुअल, जैसे चाहें, ठीक है। और मुझे हर उसकी एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट करके देना है। आपके पास 20 मिनट का टाइम, उसका कुछ निकलेगा। दूसरी एग्जाम्पल थी सिम्टम्स डिफरेंट थे, डायग्नोसिस कुछ और निकलेगा। अब जब आपने LLM से पूछा तो आपने उसको दिए डिफरेंट सिम्टम्स, तो LLM तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी एग्जाम्पल का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स दिए आपने वो एक डिफरेंट केस या डिफरेंट सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल थी। अब आपने जो LLM को एग्जाम्पल दिया या LLM को जो सिम्टम्स दिए, तो LLM तो अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा। LLM देखेगा, लेट सपोज अगर मुझे खांसी थी और मुझे नज़ला था, तो लेट सपोज मुझे फ्लू था, ठीक है, फिर मुझे चेस्ट पेन था या मेरे सीधे हाथ में दर्द है, तो लेट सपोज हार्ट अटैक की निशानी है। अब आपने उससे पूछा कि पाँव में दर्द है और सर में दर्द है, तो LLM क्या बोलेगा? ये मैं सिर्फ सोचने का आपको ज़ाविया दे रहा हूँ, ठीक है। तो
तो जब लेट सपोज मैं जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड LLM से पूछूंगा, फ्यू शॉर्ट्स के अंदर एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड देनी है, बहुत ही वाइड बहुत ही ब्रॉड एग्जाम्पल नहीं देनी, वरना आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा। बात समझ आ गई? समझ आ रही? ठीक है। देन एक एग्जाम्पल मेरे पास आई रोल प्रॉम्प्टिंग की, उसमें रोल लिखा होता है एक्ट एज अ टीचर एंड लाइक डिफाइन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप लोगों को बताइए, टीचर, मैं भी टीचर, एक स्कूल में वो भी टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, किसी और यूनिवर्सिटी में वो भी टीचर है, प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर है, लेकिन सबकी स्पेशलाइजेशन है, ऐसा ही। मैं IT का एक सर्टेन कोर्स पढ़ा रहा हूँ, सर्टेन कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जनरल आप मुझसे आके मैथमेटिक्स के सवाल पूछेंगे तो क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर मैं LLM से ये कहूँगा यू आर अ टीचर, तो टीचर तो कोई भी हो सकता है। ये क्या हो गया? बहुत ही जनरलाइज ब्रॉडर एस्पेक्ट। इसका मसला क्या है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई जो रीसेंट जो अभी मॉडल रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि मल्टीपल बिलियंस पैरामीटर पर ट्रेन हुए हुए हैं या उनके पैरामीटर्स हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर या उनका जो सिस्टम डिज़ाइन हुआ हुआ है वो इस तरीके से है कि उन्होंने बैकएंड पे कुछ स्पेशलाइजेशन या कैटेगरीज डिफाइन कर दी। सही, वो कैटेगरीज लेट सपोज एक कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो कि मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो कि साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, कुछ पैरामीटर्स हैं कोडिंग को हैंडल करेंगे। अब आपने जब सवाल किया यू आर अ टीचर, तो मुझे बताएं पीछे जो बैकएंड पे जो सिस्टम है या वो जो बेसिकली कैटेगराइजेशन है वो किसको ट्रिगर करेगा? उसके लिए LLM को बहुत मुश्किल हो जाएगी आइडेंटिफाई करना कि यार किसको मैं ट्रिगर करूँ। और LLM क्या करेगा? बैकएंड पे सबको जाकर ट्रिगर करेगा, जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो फिर क्वालिटी रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्योंकि लेट सपोज अगर आपका सवाल मैथमेटिक्स के डोमेन में था और आपने कहा एक्ट एज अ टीचर, तो टीचर तो किसी पे भी अप्लाई हो सकता है ना। अब लेट सपोज कोडिंग एजेंट से मैथमेटिक्स से सवाल पूछेगा तो आंसर तो ज़ाहिर सी बात है वो गलत आ रहा हो, या उस सर्टेन कैटेगरी वाले जो पैरामीटर्स हैं उनके पास यूज़र की क्यूरी जाएगी तो उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा, कि वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? आप लोगों ने बनाया, कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने प्रॉम्प्टिंग की एग्जाम्पल? अच्छा, आप दिखाने आते हैं ना इन सब, सही, ठीक है। अच्छा, मुझे अच्छा हुआ जो लोग आए उन्होंने दिखा दिया, उससे मुझे आइडिया मिल गया कि यार अभी भी क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन जो है ना वो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आगे चलते हैं, थोड़ा इन डिटेल पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है? सर स्क्रीन फ्रीज है आपकी। क्या है? स्क्रीन फ्रीज है आपकी। सेल्फ कंसिस्टेंसी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी की नहीं है मैंने। क्या पढ़ रहे हो? सेल्फ कंसिस्टेंसी पूछ रहे थे। तो टॉपिक होगा ना, देखो है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, तुम जब तक कवर तो करो। अच्छा, यहाँ पर आ जाते ये था, चलिए, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब बातें खत्म हो गई, आप लोग पढ़ लेते हैं, सही। जनरेट मल्टीपल रीजनिंग पाथ्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट कॉमन आंसर। या इंटरनेट ही नहीं चलता, क्या करो? क्या सर, लैन केबल यूज़ करना? लैन केबल होगी ना, वहाँ रखी होती है ना लैन केबल अक्सर। वाईफाई कभी कभी नहीं करता काम, वाइट केबल आ रही होती है वहाँ से, वो लैन केबल है। ठीक है, नजर आ रहा है ना? जनरेट मल्टीपल रीजनिंग पाथ्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट कॉमन आंसर। इसका मतलब क्या है? सही किया भाई। रीजनिंग पाथ से क्या मतलब होगा? तरीके का इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो समझते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी जो कीवर्ड है इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? सेल्फ कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी। कोई एग्जाम्पल दो, रैंडम, LLM को छोड़ दो, ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल किस चीज़ में अप्लाई हो सकती है? क्या क्या? यार बहुत उर्दू लहजे में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश छोड़ दिए मैंने पीछे, तो
और मुस्तकिल मिजाजी वो भाई साहब भी गाड़ी उर्दू में आ गए, तो आप बताएं थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी का क्या मतलब? क्या? अब मैं उर्दू में बात करूँगा तो आप भी उर्दू में बताएं भाई, मुस्तकिल मिजाजी का क्या मतलब? जल्दी जल्दी बताएं, आगे चलते हैं। आप में से कोई बता दे यार। क्या? एग्जाम्पल मांग लेना अगर कोई हर मंडे क्लास होती है, ये मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाजी सेल्फ कंसिस्टेंसी, सेल्फ सर अगर हम अपने घर से निकलने और अलग अलग रास्ते आ जाओ, गवर्नर हाउस की तरफ में इधर आना है, तो अलग अलग रास्तों से हम आ रहे हैं, लेकिन हम आना तो हमें एक ही जगह पे अलग अलग रास्ते चूज करके आए हैं। अच्छी एग्जाम्पल लग रही है, आप लोग बताएं सही है नहीं है? हाँ दोस्त तुम बताओ। रिकरिंग वे में परफॉर्म करें, सही है। डिपेंड करेगा आउटपुट पे या नहीं। अजान हो गई सर अजान आप अजान, हाँ 1 मिनट 2 मिनट का वक्त लो। हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है ना। सर लाइक गूगल मैप हम कहीं पे होते हैं, हम अपनी लोकेशन डालते हैं और लाइक मैं घर पे हूँ और मैं गवर्नर हाउस की लोकेशन डालता हूँ ना, तो 3 से 4 रोड्स आते हैं गवर्नर हाउस की तरफ। लेकिन गूगल मैप क्या करता है, जो सबसे आसान रास्ता है जहाँ ट्रैफिक नहीं है, जो सबसे सिंपल रास्ता है वो चूज़ करके हमें बताता है। सेम काम नहीं शॉर्टेस्ट सही है। पाथ। अब एलएलएम की उसमें जो है ना, मसला ये है कि शायद ये टर्म बहुत फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि सेल्फ कंसिस्टेंसी में पाथ डिपेंड करता है कि पाथ प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपसे कहेगा कि आप रोज़ सुबह उठो, वर्जिश करो, ये करो, ठीक है, लेकिन वो रोज़ सुबह उठ के वर्जिश करने जा रहे हैं, सही है। अब उसका आउटपुट आप पतले हो रहे नहीं हो रहे, वो एक बात की बात है, ठीक है, फिर इसको ऐसे ले लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों से ये कहा गया कि यार इस कोर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें। अब डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है, बेसिकली सेल्फ कंसिस्टेंसी। कोई जा रहे हैं, आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसको एलएलएम के ज़रा पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोसेस क्या है इसका, इसमें देखें क्या है। सबसे पहले आस्क द सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, विद डिफरेंट फ्रेजिंग। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा एलएलएम से और मैंने उसका फ्रेजिंग चेंज कर दी, ठीक है, मैं डिफरेंट तरीके से उसको पूछ रहा हूँ। फिर वो कह रहा है कि कंपेयर द आंसर। अब आपने डिफरेंट तरीके से एलएलएम से पूछ लिया, अब आप उसका आंसर कंपेयर कर रहे हैं और वो आंसर यानी वो आउटपुट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, आप उस पर डिसाइड कर लेंगे कि यार ये मेरा फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। वापस रिपीट करते हैं, क्या है ये बेसिकली, आपने एलएलएम से सवाल पूछा डिफरेंट तरीके से, ठीक है, डिफरेंट फ्रेजिंग के साथ। एलएलएम ने आपके सवाल के अगेंस्ट में जवाब दिया। फाइनल स्टेप में आपने मल्टीपल आंसर्स को कंपेयर किया, उसमें से जो कॉमन आंसर था उस पर आपने इत्तेफाक कर लिया कि यार ये ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। बात समझ आ गई? अब इसको ज़रा लॉजिकली सोचते हैं। अगर मैं सेल्फ कंसिस्टेंसी यूज़ करूँगा तो वो कहाँ यूज़ होगी आइडियली और कहाँ नहीं यूज़ होगी? हमारे मोबाइल पे सोचे। जहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन हो वहाँ पर जहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वहाँ यूज़ होगी और कहाँ नहीं यूज़ होगी भाई? और जनरल क्वेश्चन यूज नहीं हुई है, जनरल बात कर रहे हैं हम। कोई जनरल, अच्छा अब तुम खामोश रहना, कोई जनरल बात की एग्जांपल देगा? जनरल बात क्या हो सकती है? सही है, इसके अलावा थोड़ी सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल दो यार। मतलब देखो, अब आप लोग ने पढ़ लिया एसडीके पढ़ लिया, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली, पाइथन पढ़ ली, नेक्स्ट पढ़ ली। अब उस डोमेन या उस डायरेक्शन में जवाब दो ना। आप ये कहो यार मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, उसमें ये लेट्स वो सिनेरियो होगा, तो उसमें अगर ये पर्टिकुलर केस है तो मैं ये यूज़ करूँगा या ये यूज़ नहीं करूँगा, इस तरीके से। अब मैं मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, ठीक है, आपसे उसने पूछा कि यार लेट्स सपोज मुझे एक सिनेरियो बताओ जहाँ पे आप सेल्फ कंसिस्टेंसी वाला जो टेक्निक है वो यूज़ करोगे प्रॉम्प्टिंग के लिए। अब इंटरव्यू एआई इंजीनियर का, ठीक है, और अब आपसे वो पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ कि
कब यूज़ करोगे और कब नहीं करोगे, किस सिनेरियो में फिट बैठेगी। तो आप ये कहोगे यार वो गवर्नर हाउस मुझे क्लास लेने आना है तो मैं यूँ करूँगा और नहीं आना तो यूँ करूँगा, या लेट्स सपोज पाकिस्तान का कैपिटल है उसके लिए मैं नहीं पूछूंगा। तो सिस्टम से रिलेटेड या अपनी फील्ड से रिलेटेड कोशिश करेंगे सोच के बताएं। जो मैं जनरलाइज एग्जाम्पल देता हूँ वो खाली थोड़ा सा मजाक के लिए देता हूँ कि आप थोड़ा सा बोर्ड, ठीक है, लेकिन आइडियली आपको एग्जाम्पल वो सोचनी है जो आपके डोमेन से रिलेटेड है। आप सोच के बताएं क्या होगी। ठीक है, अब अच्छी एग्जाम्पल दी है, लेकिन अब इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं, सोचते हैं एआई क्या इतनी कंसिस्टेंट है इस वक्त कि हर मर्तबा अगर मैं फ्रंट एंड डिज़ाइन की बात करूँगा तो हर मर्तबा सिमिलर डिज़ाइन मिलेगा, नहीं, तो मेरी तो अप्रोच ही फेल हो गई। इसका मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी यहाँ तो यूज़ नहीं होगी। अगर मुझे क्रिएटिव भी चाहिए ना तो भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब तो ये है कि हर मर्तबा एक कॉपी लिखी वो दूसरी कॉपी से डिफरेंट होगी। मेक सेंस? क्या चीज़? अच्छा, यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और यूज़ कब करेंगे? ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बताए? अच्छी एग्जाम्पल कोई और? वहाँ हाँ बता दो। अच्छा एक मिनट, जोर से खड़े होकर बोलो, तुम्हारी एग्जाम्पल डिफरेंट है थोड़ी सी। अच्छा बैठ जाओ, इसी एग्जाम्पल को लेके थोड़ा सा और समझते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार लेट्स सपोज मुझे एक एरे दिया हुआ है, उसमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर निकालना है, सही, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब अगर मैं सेल्फ कंसिस्टेंसी की बात करूं तो हो सकता है पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, तो एक अप्रोच तो वो हो गई जिसमें वो मुझे कोड सजेस्ट करेगा, उसका आउटपुट ये आएगा कि भाई मेरे पास एक एरे आ गया इवन नंबर का। मेक सेंस? दूसरी अप्रोच में हो सकता है वो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन ना यूज़ करे, बल्कि वो क्या करे, कोड लॉजिक लिखे, सही है, यानी वो लूप करे, उसको डिवाइड करके देगा भाई इवन नंबर है नहीं है, और फिर उसका एरे रिटर्न कर दे। तो आउटपुट उसका क्या आएगा? सिमिलर आएगा। कोड डिफरेंट है, आउटपुट सेम है, ठीक है। तो उसकी बेस में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार लेट सपोज अगर आउटपुट सेम है, दोनों सिमिलर है, इसमें से मैं कोई यूज़ कर सकता हूँ। ये कोड लेवल एग्जाम्पल होगा जिसमें मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, मैंने पाइथन से या लेट सपोज एलएलएम से कहा कि यार इसके ऊपर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके मल्टीपल आंसर्स जनरेट करो। फिर मैंने उस आंसर्स को टेस्ट किया, यानी उन कोड ब्लॉक्स को टेस्ट किया, आउटपुट जिनका सिमिलर आ रहा था उसमें से मैंने चूज़ कर लिया। समझ आ गई बात? ठीक है, ये हो गई हमारी कोड बेस्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमें रेपो में दी हुई है, उसमें क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है, इफ स्टोर offers 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस। सही, ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद सेल्फ कंसिस्टेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लाइन डिफाइन कर रहा है वो क्या है, जनरेट 3 डिफरेंट रीजनिंग पाथ्स। अब अगेन सवाल पर आ जाते हैं उस चीज़ पे जो भाई ने बताया कि अगर लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के कैपिटल की, तो क्या मैं ऐसे ये कहूँगा जनरेट 3 डिफरेंट रीजनिंग पाथ? उधर पॉसिबिलिटी नहीं है, सही। इसी तरीके से अगर कोई डेफिनेशन वाली चीज़ है, या लेट सपोज मैं पूछता हूँ यार पाइथन के अंदर लेट सपोज वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं, तो उसमें भी रीजनिंग अप्लाई तो नहीं होती, वो एक सिंपल क्या है, क्या है, डेफिनेशन है या क्वेश्चन है जिसका आंसर एक सिंपल 1 लाइनर होगा, 2 लाइनर होगा मैक्सिमम, तो उसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मैं लेट सपोज बात कर रहा हूँ
किसी सर्टेन कोड ब्लॉक या किसी सर्टेन रिस्पॉन्स जनरेशन की, उसमें हो सकता है मुझे सेल्फ कंसिस्टेंसी यूज़ करनी पड़े, ताकि मेरे पास डिफरेंट कोडिंग या ब्लॉक सिनेरियोज हो, उनको मैं टेस्ट करूँगा, उनका आउटपुट जिनका सिमिलर आएगा उस पर मैं इत्तेफाक करके उसमें से कोई एक चूज़ कर लूँगा। सही है। अब इसमें क्या किया, इसको कहा 3 रीजनिंग पाथ, इसको कहा कि भाई जनरेट करो और सेलेक्ट द मोस्ट कंसिस्टेंट आंसर। सही है। उसके बाद इसमें पाथ 1 इसने बताया भाई ये है, पाथ 2 ये है, पाथ 3 ये है। फिर आपने देखा यार मोस्ट कॉमन आंसर क्या आ रहा है भाई 40, तो उसने क्या सेलेक्ट कर लिया आउटपुट में, ये चीज़ सेलेक्ट कर ली। अब ये कहाँ फिट होगा, ये टेक्निक आपको कैसे फिट करनी है, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप एक एजेंटिक सिस्टम आर्किटेक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई किस एजेंट के पास मैं ये वाला प्रॉम्प्ट भेजूँ, किसके पास कुछ और वाला भेजूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सही, ये हम टेक्निक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व जनरेटिंग मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल आंसर टू द सेम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा, फिर आपने उससे कहा कि यार इसके 3 डिफरेंट जनरेटिंग रिस्पॉन्स रीजनिंग पार्ट जनरेट करो या वट एवर जो भी है। तो क्वेश्चन एक है, आंसर हम LLM से मल्टीपल जनरेट करवा रहे हैं। सही है, यूजिंग वेरी रीजनिंग अप्रोच। ठीक है, अब उसमें हम कह सकते हैं उसको कि यार डिफरेंट रीजनिंग अप्रोच। अगर आप पाइथन कोड की बात करेंगे तो रीजनिंग तो अप्लाई नहीं हो रही, वहाँ पे फिर आप क्या होगी, कोडिंग टेक्निक्स प्रिंसिपल, ठीक है, उसकी बात हो रही होगी, डिफरेंट आंसर्स वहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, टू इंश्योर रिलायबिलिटी देन बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट, यानी एक मरतबा हमारे पास डिफरेंट पाथ्स आ गए, अब हम उनका रिजल्ट कंपेयर करेंगे। यू सेलेक्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट आउटकम। ठीक है, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एरर फ्रॉम अ सिंगल फ्लॉड रीजनिंग पाथ। सही है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर है वो आपने चूज़ किया, क्योंकि उसका आप ये इत्तेफाक करते हैं कि यार इसमें एरर की गुंजाइश कम है। सही है। फिर ये क्या कर रहा है, दिस मेथड लेवरेजेस द मॉडल्स एबिलिटी टू अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ठीक है, यानी लेट सपोज अगर आपका पाइथन का एक क्वेश्चन था, जब आपने मॉडल को कहा कि यार मुझे 3 तरह से डिफरेंट इसके सॉल्यूशन दो, तो मॉडल हर तरह से सोचेगा कि यार लेट सपोज बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ कर लेता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, कस्टम लॉजिक बना लेता हूँ, इस तरीके से इसको शॉर्ट कर देता हूँ, उसको लॉन्ग कर देता हूँ, इस तरीके से मॉडल डिफरेंट तरीके से सोचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जब अगर सिंगल उससे आउटपुट मांगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉड होता है, आप टेस्ट करते हैं उसमें कुछ एरर आता है। जब आपने 3 मरतबा कहा तो आपको क्या कर रहा है, वो डिफरेंट एंगल से सोच रहा है, यार ये चीज़ करूँगा ये आउटपुट आएगा, ये चीज़ करूँगा ये आउटपुट आएगा। इससे आप भी श्योर हो जाते हैं और मॉडल को भी रीजनिंग, मॉडल को भी थिंकिंग का टाइम मिल जाता है। मॉडल भी जो आउटपुट देता है मोस्ट प्रोबेबली उसमें फ्लॉ या उसमें एरर के चांसेस कम हो। सही है। अच्छा, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन द फाइनल आंसर व्हेन ऑल पाथ कन्वर्ज एज सीन हियर विद द कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ 40। ठीक है, अब ये इसमें क्या करेंगे भाई, इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस, ये हमें पता है भाई कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, जो मोस्ट रिपीटेड आंसर है वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल? देखिए रीजनिंग लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रीजनिंग के लिए यूज़ करें। सही है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। देखिए मिसाल के तौर पे कोड ब्लॉक जनरेट करना है ना, कोड आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मैंने लिखा डिफरेंट है, किसी और ने लिखा थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है लाइब्रेरी वो चीज़ यूज सेम सिमिलर यूज़ करे। सही, अब इस प्रॉब्लम में भी हम देखेंगे सिमिलर यूज़ क्या कर रहा है, 20% 50%, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। चेंज क्या हुआ, अप्रोच चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पाइथन के कोड की बात करूँ तो हो सकता है आप कस्टम लाइब्रेरी यूज़ कर लें, हो सकता है मैं खुद से पूरा कोड लिखूँ इतना लंबा, हो सकता है मॉडल इसका कोई शॉर्टर तरीका बता दें, क्लीनर अप्रोच बता दें। तो ज़रूरी नहीं आप इसे सिर्फ रीजनिंग के हवाले से सोचें, आपको ये सोचना है कि यार ये चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे मुझे एरर का चांस कम से कम करना है, वहाँ पे मैं सेल्फ कंसिस्टेंसी यूज़ करूँ। अब एक फैक्चुअल बात है, ठीक है, पाकिस्तान के बानी कौन, कायदे साहब। अब आप 36 मरतबा पूछें, 1 मरतबा पूछें, 200 दफ़ा पूछें तो वो बदलेगा नहीं। ठीक है, कराची का मौसम आज कैसा है, आपको 1 मरतबा मॉडल ये नहीं कहेगा यार यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, फिर दोबारा आप कहेगा कि यहाँ पे गर्मी निकली है, ऐसा तो नहीं है ना। वो आपसे फैक्चुअल रिस्पॉन्स है, वो जो पूछेंगे 10 मरतबा पूछेंगे, 100 मरतबा पूछेंगे, आंसर वही रहेगा। लेकिन लेट सपोज कोड ब्लॉक है, 1 मरतबा पूछेंगे, फिर मॉडल करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करो, चेंज करेगा, फिर बोलेंगे इसको ऑप्टिमाइज़ करो, चेंज करेगा। ठीक है, आउटपुट हो सकता है कभी गलत आएगा, कभी सही आएगा। ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे कि भाई मल्टीपल आपके पास कोड ब्लॉक जनरेट हो गए, आपने चेक किया यार किससे आंसर सेम आ रहा है, फिर उसमें से आपने चूज़ कर लिया जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जो बहुत ऑप्टिमाइज है। ठीक है, सिर्फ
यहाँ पे एग्जाम्पल जनरलाइज दी। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि यार जब आप पाइथन में काम करेंगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच रहे हैं तो कैसे होगा, सही। आगे चलते हैं, स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग। अब यार कोई मुझे पढ़ के बताए क्या लिखा हुआ है। खड़े हो, हाँ खड़े हो, जब पढ़ो ना यार। अरे मैं Ask the most general question first and use the context for the specific question. ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ो एग्जाम्पल। First, what are the key principles of the good user interface design? Get response. Now using those principles, design this mobile app login screen interface. So, like, what? Descriptions. Example to your question: how should I optimize the loading speed of my e-commerce website? Step one: first, what are the key factors that generally affects the website loading? Loading speed. Response key factor include server response time, good quality server location. स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। आस्क अ मोर जनरल क्वेश्चन फर्स्ट, देन यूज दैट कॉन्टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब इसकी अप्रोच क्या है, हम मॉडल से सबसे पहले एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं। उससे पूछते हैं कि यार लेट सपोज ये टॉपिक है, इसके क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या आउटकम है, ठीक। फिर हम मॉडल से अगला अपने मतलब का सवाल पूछते हैं कि यार ये जो तुमने प्रिंसिपल बताया है, ये तुमने रूल्स बताए हैं, या तुमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसकी बेसिस पे मेरा ये सवाल है, इसका आउटपुट जनरेट करके दो। ये बात है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। ये कह रहा है फर्स्ट, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ गुड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यानी यूआई डिज़ाइन के क्या की और अच्छे प्रिंसिपल हैं। पहले सवाल आपने क्या किया, मॉडल से इसका जवाब पूछा। अब मॉडल कहेगा कि यार वो पिक्सल यूज़ ना करो, और इस तरीके से परसेंटेज यूज़ ना करो, रिलेटिव मेजरमेंट यूज़ करो, और ये सारी चीज़ें उसने बता दी, सही। जब ये सारी चीज़ें उसने बता दी, अब आप उससे पूछेंगे कि यार मुझे एक अच्छा डिज़ाइन जनरेट करके दो। लेट्स सपोज इट कुड बी फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, इट कुड बी फॉर वेबसाइट। तो पहला स्टेप क्या है, हमने मॉडल से जनरलाइज या ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा, प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। मॉडल ने उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, वो रिस्पॉन्स का रेफरेंस लेके हमने अपना एक्चुअल क्वेश्चन देन पूछा। बात समझ आ गई? समझ आ गई? किसको नहीं है पूछ लो, और किसको आ गई, और बाकी सब चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसने एक एग्जाम्पल है, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट जनरली अफेक्ट्स वेबसाइट लोडिंग स्पीड, सही। अब मॉडल ने ये रिस्पॉन्स जनरेट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मॉडल से कहा यूजिंग दीज फैक्टर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू ऑप्टिमाइज द लोडिंग स्पीड ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट विद हैवी, और क्या लिखा हुआ है, with heavy product images and multiple third party plugins, सही। तो टेक्निक के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व है। पहला पार्ट क्या है, आज का ब्रॉडर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिंसिपल, रिगार्डिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा अवेलेबल है वो हमने पूछा, और फिर वही डेटा फीड करवा दिया अपने एक्चुअल क्वेश्चन से। अब यहाँ पे यूआई की एग्जांपल दी हुई है, आप लोग को ये और एग्जांपल सोच के बताएं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, नॉर्मल भी बता सकते हो, मगर बिरयानी की एग्जांपल के अलावा बताएं। सर जैसे हम किसी से भी कोई काम का बोले अपने घर में कि शरबत बना के लेके आ जाओ, चाय बना के लेके आ जाओ। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट बोले एलएलएम को बोल कुछ भी सकते हैं। अच्छा चलो बोलो। तो हम उससे पहले पूछेंगे कि आपको ये बनाना आता है, वो कहेगा मैं बनाना आता है, तो हम उससे कहेंगे बना के लेके आ जाओ। अच्छा रुक जाओ, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, ठीक है। और ये मैं पूछता हूँ आपसे, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा आप बता दें, फिर मेरी एग्जांपल ज़्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप सही था, लेकिन पहले में भी थोड़ा कुछ गड़बड़ है। मैं इसको थोड़ा डाइसेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ। और कोई बताएगा एग्जाम्पल? हाँ दोस्तों बताओ, आपसे पूछता हूँ।
तुम पूछो ना बताओ, बताओ। कोच वाले सर हम पूछ सकते हैं कि एक अच्छे मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस में क्या क्या फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से एक अच्छे मोबाइल की रिकमेंडेशन चलेगी। ठीक है, और कोई बताएगा? हाँ दोस्त, आप बताओ। कौन सा बेस्ट टाइम, और दूसरा आपने क्या कहा? प्लेसेस, सही है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ दोस्तों बताओ। हम्म, सही है। ठीक है, अब ये हमने सीरियस एग्जाम्पल सुन ली, कोई फनी एग्जाम्पल बताएगा किसी के जहन में? हाँ बताएं। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। भाभी को बताना पड़ेगा, क्लास में आना आपको बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है। अब चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं अच्छी बीवी की खुसूसियात, क्या कर रहे हैं यार? और कोई बताए? रिश्ते वाली आंटी। ओके, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल मुझे याद आ रही है जो शायद जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें किसी ऑनलाइन में किसी ने शेयर की थी, तो उन्होंने कहा कि यार सर एग्जांपल ऐसी है कि मेरे अब्बू बैठे हुए थे, ठीक है, ये सुनिए ना आपने? हाँ, वो कह रहा मेरे अब्बू घर में बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा कि अच्छी चाय कैसे बनती है, या अच्छी चाय की क्या खुसूसियात हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उनके वाले साहब ने कहा कि एक काम करो, एक अच्छी चाय बना के, तो बहुत पता है। यानी पहले पूछा कि भाई चाय अच्छी कैसे बनती है, उसमें क्या होना चाहिए। अब उसमें वो दो मेरे ख्याल से सिबलिंग्स थे, तो उन दोनों ने अपना अपना नज़रिया पेश किया, तो उसमें उनके वालिद साहब को जो अच्छा लगा उन्होंने बोला यही नज़रिया कॉपी करके मेरे लिए अच्छी सी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली प्रिंसिपल्स पूछे एंड देन उस पर एक्शन लिया। अब जैसे इन भाई ने एग्जाम्पल दिया था ई कॉमर्स की, बिल्कुल सही एग्जाम्पल थी। आपने तो उस मोबाइल की एग्जाम्पल दी थी, किसकी दी? किस मोबाइल की आपने दी? आपने क्या बताया था मोबाइल का? अच्छे मोबाइल की अच्छे परफॉर्मेंस वाले मोबाइल की फैक्टर परफॉर्मेंस का फैक्टर में और रोड रेकमेंडेशन। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो इनिशियल है उसमें आपको टाइम स्पेन डिफाइन करना पड़ेगा। देखो आज से अगर 5 साल पहले बात करूँ तो शायद 15 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी ठीक था, शायद प्रोबेबली, मे बी इससे पीछे कर लेते हैं 7 साल 8 साल। लेकिन अब आप कोई भी मोबाइल उठाएंगे उसमें मिनिमम कितना होगा? 50। और पता नहीं लिखते कैसे, होता तो नहीं है वो, ठीक है। तो आप उसको क्या कहेंगे यार LLM से कि यार आजकल कौन सा प्रोसेसर, कौन सा कैमरा, या मतलब लेंस की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट और प्राइस रेंज क्या है, आजकल कौन सा ऐसा अच्छा मोबाइल अवेलेबल है, उसमें LLM बताएगा। फिर आप उससे कहोगे कि यार मुझे सजेस्ट करो, मेरा बजट इतना है, कौन सा मोबाइल मेरे फिट करेगा। तो पहले आपने प्रिंसिपल डिफाइन किया कि यार मैं मोबाइल अच्छा कौन सा होता है आजकल के दौर में, ठीक। पुराना तो वो कोई ओल्ड मोबाइल ही बता देगा, सही। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम का मसला है। और कोई एग्जांपल बताई थी किसी ने, जी याद नहीं आई। दोस्त आपने क्या बताई थी? ट्रिप प्लान करने की। हाँ, इनकी एग्जाम्पल भी अच्छी थी कि आपने LLM से पूछा कि यार मोस्टली ट्रैवलर किस महीने में सफ़र करते हैं, ठीक है, या कौन सा महीना ऐसा अच्छा है जिसमें ट्रैवल किया जाए। देन फिर आपने उससे कहा कि यार मेरे लिए एक ट्रिप प्लान करो फला महीने के अंदर या इस जगह पे जो भी है, व्हाटएवर। ये कौन सी अप्रोच हो गई भाई? कौन सी हो गई? स्टेप है, सही ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी इन्होंने एक्सप्लेन, जी।
एक मिनट, पहला सवाल क्या था? आपने उससे क्या पूछा कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो इंटरव्यू में, सही है। और अब आपने दूसरा सवाल क्या है? दोनों इंटरलिंक्ड है, ये शायद बेहतर स्टेप बैक में नहीं बैठ रही, ठीक है। अब हम सोचते हैं इसको डिफरेंट तरीके से। मैंने एलएलएम से पूछा यार आजकल पाइथन के कौन से सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सीनियर पाइथन डेवलपर, तो वो बता देगा यार ये, या लेट्स सपोज एम्प्लॉयर आजकल पाइथन डेवलपर में किस स्किल को ज़्यादा टटोलते हैं या बेसिकली उसको ज़्यादा टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो बता देगा ये लिस्ट। अब आपने कहा कि यार इन लिस्ट से या इन स्किल्स से मुझे क्वेश्चंस बना के दो, इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अब ये हो गई स्टेप है कि इनिशियली आपने कहा कि यार क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, क्या प्रिंसिपल अभी है ना, क्या स्किल्स है ना, उन स्किल्स की बेसिस पे आपने फिर उससे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देन हमारे पास है स्टेप बैक की जो डिस्क्रिप्शन लिखी है फॉलो कर लेते हैं। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग इन्वॉल्व्स फर्स्ट आस्किंग अ ब्रॉडर फाउंडेशनल क्वेश्चन टू एस्टैब्लिश की प्रिंसिपल और कॉन्टेक्स्ट बिफोर टैकलिंग दी स्पेसिफिक टास्क। ये हमने समझ लिया, ठीक है। ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर हम इस्टेब्लिश करते हैं की प्रिंसिपल, कॉन्टेक्स्ट, और फिर उससे रिलेटेड हम स्पेसिफिक अपने टास्क का सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब ये अप्रोच क्या इंश्योर कर रही है? मॉडल ग्राउंड्स इट्स रिस्पॉन्स इन जनरल नॉलेज, एग्जाम्पल फैक्टर अफेक्टिंग द वेबसाइट, और ये एग्जाम्पल दी हुई है। बाय ब्रेकिंग द टास्क इनटू टू स्टेप द मॉडल प्रोड्यूस मोर इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रक्चर्ड रिकमेंडेशन, रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ ओवरलुकिंग क्रिटिकल फैक्टर्स। सही है। अब ये उसके फ़ायदे डिफाइन किए हुए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया बहुत है, आगे चलिए, ठीक है। देन हमारे पास है रिएक्ट, ठीक है, रीजनिंग प्लस एक्टिंग। अब इसमें क्या? कंबाइन रीजनिंग विद टूल यूज और एक्शन। अब इसको देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल दी हुई। आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रंस दी मेंबर्स ऑफ द मेटालिका हैव इन टोटल। अब इसने क्या किया? इसने शायद किसी मेटालिका बैंड के बारे में पूछा है, और उसने पूछा कि भाई इनके कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है? एलएलएम पहले सोचेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या? थॉट प्रोसेस। आई नीड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बैंड मेंबर एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अब मेटालिका बैंड एक म्यूजिकल बैंड होगा जिसमें 4-5 लोग होंगे। तो अब एलएलएम क्या कर रहा है? एज अ फर्स्ट स्टेप उसने क्या किया? इंटरनेट पे उसने पहले सोचा कि यार इसको करना क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कि यार इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उनका चिल्ड्रन काउंट निकालो कि यार लेट्स सपोज, दोस्त आपका नाम क्या? पीछे मुजफ्फर। अरे यार दाढ़ी वाले भाई, आप यार क्या? अब ये आपका नाम तो बड़ा मुश्किल है, एस ले लेता हूँ। एस वाले भाई, अब मिसाल के तौर पे इनके 3 ही बच्चे हैं, फिर आपके 2 बच्चे न होंगे नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानो। तो इंडिविजुअल मेंबर्स के बच्चों का काउंट निकालना, फिर उनका सम करके एलएलएम जवाब देगा, ठीक है। ये क्या है भाई? पहले थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में क्या है? पहले इंडिविजुअल मेंबर्स के उसको काउंट चाहिए। अब काउंट चाहिए, उसके लिए इसको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक्शन में इसने क्या किया? वेब सर्च, पहली चीज़ सर्च फॉर मेटालिका बैंड मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके रिजल्ट आ गया। थॉट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब दोबारा क्या फिर है? थॉट, ठीक है। इसमें क्या? नाउ आई नीड टू सर्च फॉर ईच मेंबर इंडिविजुअली। अब रीजनिंग या रिएक्ट अप्रोच में 3 चीज़ें होती हैं। पहले एलएलएम सोचता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है, उस एक्शन का जो रिस्पॉन्स आता है उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और फिर यूज़र को आउटपुट देता है। तो क्या क्या हुआ हमारे पास? हमने देखा यहाँ पे कितनी चीज़ें? थॉट, एक्शन एंड देन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्शन ज़रूरी नहीं है हर मतलब अप्लाई हो, ठीक है। हो सकता है एलएलएम के पास आंसर आ जाए तो वो थॉट देखिएगा, सोचेगा, और फिर वो देखेगा कि यार अच्छा अब मेरे पास जितना डेटा है वो कंप्लीट है, तो वो ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल साइकिल में क्या हो रहा है? थॉट यानी पहले एलएलएम ने सोचा, देन एक्शन यानी उस सोचने के अगेंस्ट में, उस रीजनिंग के अगेंस्ट में एलएलएम ने एक्शन लिया, और एक्शन से जो आउटपुट आया अब वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि यार ये कंप्लीट है, आया कंप्लीट है या नहीं है। अब ये वाली एग्जाम्पल है, ये अच्छी है। इसमें इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अब इसने सबसे पहले पूछा है कि करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो क्या है, फिर वो पूछ रहा है कि इसको कंपेयर करो किसके साथ? न्यूयॉर्क सिटी के साथ। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखते।
एज अ ह्यूमन आपकी अप्रोच क्या होगी अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूँ? टोक्यो की करंट पॉपुलेशन मैं ढूंढूंगा, फिर मैं न्यूयॉर्क की करंट पॉपुलेशन ढूंढूंगा और फिर इन दोनों को कंपेयर करके आउटपुट दूंगा। अब देखते हैं एलएलएम अगर रिएक्ट अप्रोच यूज़ कर रहा है तो वो किस तरीके से होगा। आई नीड टू फाइंड करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड न्यूयॉर्क सिटी टू कंपेयर देम। वैसे ही सोच रहा है, पहले पॉपुलेशन चाहिए टोक्यो की, देन न्यूयॉर्क की, और फिर कंपेयर करेगा। ठीक है, आई शुड ट्राई सर्चिंग फॉर दी, अब इसने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, एक्शन क्या है वेब सर्च, और इसने यहाँ पे क्यूरी लिखी है करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो। सही, इस एक्शन के अगेंस्ट में एक्शन क्या था, वेब सर्च। सही है, उसके अगेंस्ट में इसको लेट्स सपोज ऑब्जर्वेशन में मिला अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एस्टीमेट टोक्यो पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, ये जो भी आ गया, ठीक है 37.4 मिलियन, ये पहला इसको मिल गया। अब क्या होगा, अरे यार ठीक है, अब थॉट अगेन ऑब्जर्वेशन में इसको क्या मिला, पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो, लेकिन अभी भी न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन रहती है। अब क्या करेगा, अगला एक्शन, अगला थॉट देखो, नाउ आई हैव टोक्यो पॉपुलेशन, नेक्स्ट आई नीड द पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। उसके अगेंस्ट में फिर एक्शन परफॉर्म होगा, उस सेक्शन में क्या है, अब न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन, उसके अगेंस्ट में जो रिजल्ट आया वो उसने ऑब्जर्व किया, उसमें क्या है, न्यूयॉर्क पॉपुलेशन इज 23.6 मिलियन। ठीक है, अब आप पे यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, थॉट विथ बोथ फिगर्स आई कैन कंपेयर देम, टोक्यो हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन देन द न्यूयॉर्क सिटी बाय अबाउट 13.8 मिलियन। अब देखें इसने सोचा ना, यहाँ पे अब एक्शन है ना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, अब क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेप में एक्शन रिक्वायर्ड होगा, एक्शन तभी रिक्वायर्ड होगा जब उसकी नीड है, लेकिन वंस एलएलएम के पास आउटपुट इनफ आ गया, अब वो कंप्लीट या फाइनल आंसर प्रोवाइड करता है, वहाँ पे फिर वो सोचेगा और आपको फाइनल आउटपुट देगा। अब वहाँ पे एक्शन की नीड नहीं है। ठीक है, रिएक्ट अप्रोच क्या है, बेसिकली रीजनिंग प्लस एक्टिंग, इसमें तीन चीज़ें हैं, थॉट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन। थॉट अगर कंप्लीट है, एलएलएम फाइनल आंसर प्रोड्यूस कर सकता है, तो रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, एलएलएम थॉट प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनल आंसर दे देगा। मेक सेंस, बात समझ आ गई, किसी का सवाल तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसको जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाई, रिएक्ट रीजनिंग प्लस एक्टिंग इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजी दैट इंटरलीव्स रीजनिंग स्टेप थॉट्स विद एक्शन, यानी टूल कॉल्स और एक्सटर्नल क्वेरीज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आइटरेटिवली। देन ईच साइकिल इंक्लूड्स अ थॉट, हर साइकिल में थॉट है। सही, प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप, सही है, एन एक्शन, एग्जीक्यूटिंग अ टूल और सर्च, एंड एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग द रिजल्ट। तो थॉट क्या है, बेसिकली प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप, एक्शन क्या है, टूल कॉल या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी एग्जीक्यूशन, और फिर ऑब्जर्वेशन क्या है, जो टूल कॉल से जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट मिला, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, दिस लूप कंटिन्यूस अंटिल द क्वेश्चन इज रिजॉल्व, यानी ये थॉट, एक्शन और रीजनिंग का लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा अनलेस आपका फाइनल आउटपुट कंप्लीट नहीं हो जाता। बात समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहा आपको? ब्रेक चाहिए? ये बस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेना। सही, अलाउइंग द मॉडल टू डायनामिकली गैदर इंफॉर्मेशन एंड रिफाइन इट्स अप्रोच। ठीक है, अब साइकिल कंप्लीट हुआ, जैसे ही फाइनल साइकिल पे आएगा वो एक मरतबा थॉट करेगा और फाइनल आंसर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे आखिरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो है, इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क रिक्वायरिंग रियल टाइम डेटा और मल्टीपल स्टेप वेरिफिकेशन। अब अगर मैथ का प्रॉब्लम है तो क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या इस अप्रोच की ज़रूरत है? मेरे लिए कौन सी अप्रोच काम करेगी फिर? अगर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो क्या मैं रिएक्ट वाली अप्रोच यूज़ करूँगा? नहीं, मैं कौन सी यूज़ करूँगा? COT, सेल्फ कंसिस्टेंसी। सही है, लेकिन अगर मुझे स्टॉक मार्केट का डेटा एनालाइज करना है तो क्या मुझे इस टेक्निक की ज़रूरत है, COT की? इस टेक्निक की, क्योंकि इसमें टूल कॉल इन्वॉल्व है, इसमें एक्सटर्नल टूल कॉल इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स क्यूरी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व है। तो ये याद रखिएगा, जब हम रिएक्ट अप्रोच की बात करें तो इसमें टूल कॉल या एक्सटर्नल इंटीग्रेशन विद द लाइब्रेरीज, ये चीज़ इन्वॉल्व है। जब सिनेरियो ऐसा हो जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आपको कौन सी अप्रोच यूज़ करनी? रिएक्ट। सही, ब्रेक ले लेते हैं, कितनी देर का चाहिए आप लोगों को?
अपने नोट्स भी बना कर आता था। अब मैं रियल टाइम चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, उसी से सोच रहा हूँ यार सही बोली नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मसला है, लेकिन बेयर विद मी, कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी भी कुछ लोग नहीं आए, ज़रा 1-8 मिनट का और वक्फा ले लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है ट्री ऑफ थॉट्स। अब आप लोगों ने पढ़ा है चेन ऑफ थॉट्स, कितना खाएंगे यार, बस कर दे, मुझे भी पूछ लें, मजाक कर रहा हूँ यार। एक काम करें, पीछे तक पानी वानी पी कर आ जाए, थोड़ा सा मुंह स्ट्रेट भी कर लें। यूं 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 चले जा रहे हैं। ट्री ऑफ थॉट्स पे आते हैं, ठीक है। चेन ऑफ थॉट्स जो है उसमें क्या था, स्टेप बाय स्टेप, मल्टीपल स्टेप नहीं, सिंगल डायरेक्शन है। पहले ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप, ठीक है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस होगा? सर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस टू अचीव सेम आउटपुट, लेकिन उस ब्रांचेस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वो जो मल्टीपल जो ब्रांचेस निकली हुई उसमें सबसे ऑप्टिमम पाथ को चूज़ करते हैं। अब ऑप्टिमम पाथ का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। अब ले लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे किसी ने दी थी कि लेट सपोज मुझे मलिर से गवर्नर हाउस पहुँचना है, ठीक है। अब आपने ये एलएलएम से पूछा थोड़ी देर के लिए, एलएलएम ने कहा कि यार लेफ्ट जाओ, यूँ निकलो, यूँ जाओ, पहुँच जाओगे। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता है सीधा जाओ, बीच में ट्रैफिक होगा, पहुँच जाओगे, ठीक है। और एक रास्ता इस तरफ से निकलना है कि यार यूँ जाओ, यहाँ जाओ और फिर पहुँच जाओगे। कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि यार लेट सपोज बारिश हुई, रोड टूट गया। अब आपको पता है कि यार इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ फला जो पैच है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, उसमें पानी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से तो मैं नहीं जा सकता। स्ट्रेट रोड में एक सर्टेन पोर्शन पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, ठीक है। तो आपको पता है कि यार वहाँ जाऊँगा तो मेरी क्लास निकल जाएगी। और लेट सपोज तीसरा वाला जो रोड है उसमें आपको पता है कि यार पुलिस वाले खड़े होंगे, 5,000 रुपये का आपका नंबर प्लेट का चालान हो जाएगा, क्योंकि आपने अजरक वाली नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगाई, सही है। अब आपके पास 3 पॉसिबल तरीके तो हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, लेकिन उन सब पाथ में कोई ना कोई एक हर्डल है। अब आप क्या करेंगे, आपने एनालाइज किया कि अच्छा एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स ये दिया, एक रिस्पॉन्स ये दिया, एक ये वाला, ऑप्टिमम पाथ कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ, जो ये पैच आएगा जहाँ पे पानी है या जहाँ पे रोड ठीक नहीं है, वहाँ से मैं राइट टर्न लूँगा, सीधे वाले रोड पे आऊँगा, ठीक है। वहाँ से सीधा गया, जैसे ही वो पैच आया जहाँ पे ट्रैफिक जैम है, अंदर लूँगा, अब वो पुलिस वाले पीछे रहेगा। अब वहाँ से जाके मैं गवर्नर हाउस पहुँच जाऊँगा। अब ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑप्टिमम पाथ। मैंने क्या किया, हर पाथ के अंदर से सर्टेन कंपोनेंट्स को उठा के एक ऑप्टिमम पाथ बना दिया, जो कि मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। मैंने क्या चीज़ स्किप की, वो जो पैच था जो कि टूटा हुआ था, फिर मैंने ट्रैफिक जाम को भी स्किप किया, और फिर मैंने पुलिस वालों को भी स्किप किया, और एट द एंड में कहा गया गवर्नर हाउस पहुँच गया। इन जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चेन ऑफ थॉट होता तो क्या करता, पुलिस वालों के पास जाता, रुकता, चालान मिलता, फिर जाता, गवर्नर हाउस पहुँच जाता, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन ट्री ऑफ थॉट्स में मल्टीपल पाथ्स आइडेंटिफाई किए, उनके अंदर सर्टेन कुछ पोर्शंस हैं या सर्टेन कंपोनेंट्स हैं, जो ऑप्टिमम कंपोनेंट्स थे उनको मिला के मैंने एक फाइनलाइज पाथ बनाया जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम है। समझ आ गया, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पे आते हैं, आप पढ़ेंगे डेफिनेशन। Tree of thoughts explore multiple reasoning branches simultaneously for complex problems. When to use creative problem solving, strategic planning, complex decision making, tasks requiring exploration of alternatives. इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, बैठ जाए।
एक्सप्लोर मल्टीपल रीजनिंग ब्रांचेस साइमल्टेनियसली फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टीपल रीजनिंग ब्रांचेस, 3 ब्रांच हो गई हमारी रोड वाली, सही। साइमल्टेनियसली जीबीटी से आपने सवाल किया, साइमल्टेनियसली उससे आपको बताया यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, ये भी से जा सकते हो। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, मलिर से गवर्नर हाउस आना, थोड़ी देर के लिए हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, सही। 3 डिफरेंट पाथ, तीनों जनरेट होंगे साइमल्टेनियसली। अब मैं साइमल्टेनियसली पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ये याद रखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्री ऑफ थॉट्स की, तो जो मुझे पाथ मिलेगा स्टेप बाय स्टेप नहीं है। एज पर दी डॉक्यूमेंटेशन 3 पाथ है, 4 पाथ है, 5 पाथ हैं, तीनों मुझे एक ही रिस्पॉन्स में मिलेंगे, ये याद रखो। ठीक है, अब व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करना चाहिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम है, उसका आपको फाइनल, लेट्स सपोज उसका आपको डिफाइंड पाथ या डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, जनरेट करेंगे मल्टीपल रीजनिंग या मल्टीपल पाथ्स जनरेट करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। फिर आप एनालाइज करेंगे कि यार लेट्स सपोज कौन सा पाथ अच्छा रहेगा, और फिर आप मुख्तलिफ ब्रांचेस बना के एक ऑप्टिमम पाथ निकालेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, टास्क रिक्वायरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब एक बात तो हो गई है रास्ते वाली, कोई और ऐसी फनी एग्जाम्पल किसी के जहन में है, सोचे थोड़ी देर के लिए। सोचें, ठीक है, चलें आप नहीं बता रहे तो आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड टारगेटिंग यंग अडल्ट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है किसके लिए, एक यंग क्लोथिंग ब्रांड है, सही है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो यार नफस ज़्यादा है, क्या करूँ। अगर ये आइडेंटिफाई करना है और मैं आपसे रैंडमली पूछूं, दोस्त तुम बताओ, तुम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक क्लोथिंग ब्रांड है, अपने जहन से सोच के बताओ यार तुम कैसे मार्केटिंग करोगे। सर मैं मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू करूँगा। सही, एक बस फेसबुक के थ्रू। आप में से कोई बताएगा, तीसरे नंबर पे आप बताएं, इंस्टाग्राम के थ्रू। और कोई बताएगा, आप बताएं। एड्स चलाऊँगा तो कहाँ चलाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर। अच्छा टिकटॉक यूट्यूब पर। दोस्त आप बताओ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, चलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब पे, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और दोस्त भी बताओ, कोई फनी एग्जाम्पल नहीं आ रही हम लोगों को यार। न्यूज़ पेपर कौन पढ़ रहा है आजकल, ये फनी एग्जाम्पल दी। अब ये फनी है ऐसी, लेट्स सपोज मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया और पर्चे बांट रहा हूँ, फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है ना। एटलीस्ट देखेगा तो कोई, न्यूज़पेपर तो तुम रद्दी वाले के पास जा रहे हो, उसमें पकौड़े समोसे भरे। सर एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें ना कंप्लीट ऐसे बनवाए हैं, उनको फोल्ड ऐसे करा हुआ है, ऐसा लग रहा है बॉडी में उसमें से 5 हाँ, निकल रहा है, वो देखा है। वो कहाँ रखेंगे, मस्जिद के बाहर ही रखेंगे। वो देखते हैं अलग-अलग जगह लोग उठाकर देख रहे हैं मौलवी को, वो खोल के देखा तो कंप्लीट है। ये मैंने देखा हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी आइडियल जगह क्या होगी। सर शॉपिंग मॉल, देखो भीड़ भाड़ वाली अगर जगह होगी तो वहाँ तो शायद वो ना नज़र है, इतना विजिबल ना हो। सर नोट है, कैसे नजर नहीं आया। 5,000, अच्छा पार्क्स में भी नहीं, कोई और सोच जगह सोच के बता। फुटपाथ, 5,000 के नजर अम्यूजमेंट पार्क, आ जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क हो, सिनेमास, अम्यूजमेंट पार्क भी हो सकता है। यंगर जनरेशन ज़्यादा मौज में होती है, मुझे लगता नहीं है यार। आप में से कौन मौज जाता है हर हफ्ते। किधर, आप तो यार आपकी बेगम है, वो लेके जाती हैं। फुटपाथ पे रोज लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सिंगल बंदा है, आप लोग मॉल जाते हैं। तो दोस्त तुम फिर कौन सी यंग जनरेशन में, कोई सही बताओ। ओल्डर सोच के। जनरेशन जाती है।
तुम बर्गर वाली यंग जनरेशन की बात कर, डिफेंस वाले वो उठा लेंगे पाम्पलेट, मुझे नहीं लगता यार उनको देख के पता चल जाएगा। सर इंस्टाग्राम किसी मम्मी डैडी बच्चे को टी-शर्ट पहनाकर उसको थोड़ा सा कर सकते हैं मार्केटिंग। एक मुझे चीज़ याद आ रही है, यहाँ पे गवर्नर हाउस में प्रोग्राम होता है ना, वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ रख देते हैं। ओके चलो, ये एक मार्केटिंग हो गई ज़मीन पे। यूनिवर्सिटीज़, हाँ अच्छी जगह। यूनिवर्सिटीज़ में मार्केटिंग कैसे होगी? मगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या चीज़? स्टूडेंट्स को लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई इवेंट वगैरह होते हैं उसमें दे रहे होते हैं। हाँ सही है। और यंग अडल्ट्स के लिए कर रहे हैं, किस टाइप के यंग अडल्ट्स के लिए? गर्ल्स हैं, बॉयज़ के लिए कर रहे हैं या गर्ल्स के लिए कर रहे हैं? पहले वो तो मार्केटिंग में पता होना चाहिए, ऑडियंस तो पता यार होना यंग चाहिए। अडल्ट लिखा हुआ है, तुम लड़कों की एग्जाम्पल लो, वो लड़कियों की ले, खत्म हो गई जिंदगी। मार्केटिंग उस हिसाब से होती है। सर जैसे एक्सपो सेंटर में काफी सारी चीजें वो तुम हाइड्रोसेक्सुअल बन के चल। सही है। उन्होंने हर चीज मार्केटिंग करने के लिए पैम्पलेट्स वगैरह दिए, अपनी मशीनें वगैरह के बारे में समझाया, तो इस तरीके से भी तो मार्केटिंग की जा सकती है। सही है, ठीक है। अब इस सब का मतलब क्या था? आप सबने अपने अपने तौर तरीके से बताया कि यार मेरे हिसाब से ये तरीका है मार्केटिंग का, ये अच्छा होगा, इससे आउटपुट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो सबके पास अपना अपना एक तरीका है, उसने इंस्टाग्राम का, उसने फेसबुक का, ठीक है। अब हम देखेंगे यार इसमें ROI कितना है। लेट सपोज कि यार मैं मस्जिद के बाहर अगर फेंक रहा हूँ, यार मॉल के बाहर फेंक रहा हूँ, तो उसमें खर्चा कितना है और रिटर्न कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कर रहा हूँ तो यूट्यूब की तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी शायद, ठीक है, तो वो बेचने की वजह जेब से ही जा रहा होगा। फेसबुक की मार्केटिंग शायद चल जाए प्रोबेबली, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल पाथ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको सपोज फेसबुक की मार्केटिंग में भी ऐसे कोई सिंपल तो नहीं है ना। आप उसका क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे यार कौन सी नीच है, किस कैटेगरी में डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर उसका पूरा प्लान हो। इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लान होगा। अब लेट सपोज इंस्टाग्राम ले लेते हैं या फेसबुक ले लेते हैं। फेसबुक पे डायरेक्ट ऐड भी चल सकता है जो फेसबुक रन करेगा, या मैं किसी इन्फ्लुएंसर जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों उसको मैं अपना ब्रांड दूं या उसको मैं अपना प्रोडक्ट दूं और वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करे, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है सेम प्लेटफॉर्म पे, सही। तो मैं डिसाइड करूंगा कि यार लेट सपोज इस ROI किस पे ज़्यादा है, खर्चा किस पे कम है, और उस तरीके से मैं एक ऑप्टिमम पाथ आइडेंटिफाई करूंगा जिससे मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद इसने कुछ और लिखा हो। अब यहाँ पे क्या है, ब्रांच 1। अब आप समझें कि ट्री बना हुआ है, ट्री में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन, देन ब्रांच 1 नीचे की तरफ जा रही है, सही है। ब्रांच 1 में क्या है, सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है। इसमें इसने सोचा क्या, यंग अडल्ट्स आर एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म। अच्छा मॉल में नहीं है यार, देखो क्या कह रहा है, कहाँ एक्टिव है, सोशल मीडिया, ठीक है, लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। टिकटॉक लाइव का आपने सुना, उस पर भी हो सकता है, हम नहीं जाते, ठीक है। अ कैंपेन यूजिंग इन्फ्लुएंसर कोड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लोरेशन क्या, इसके प्रॉस क्या, हाई एंगेजमेंट, विजुअली अपीलिंग फॉर क्लोथिंग, कॉस्ट इफेक्टिव एंड विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। रिस्क ऑफ इनऑथेंटिक पार्टनरशिप, ओवर सेचुरेशन एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इसने इसकी प्रॉस एंड कॉन्स बताए हैं, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देन ब्रांच 2 क्या, अब ब्रांच 1 यहाँ से निकली क्वेश्चन, ब्रांच 1 ब्रांच 2 ये रही। अब ये क्या है, होस्टिंग पॉपअप शोज एट इको कॉन्शियस फेस्टिवल और कॉलेज कैंपसेस कुड क्रिएट डायरेक्ट एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स आ गए। फिर थर्ड ब्रांच है वो ये वाली है, इसमें क्या है, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, partnering with eco-friendly brands, sustainable accessories could cross-promote to align audiences. Then उसकी exploration है, pros उसके expand reach via partner network और reinforce eco-emission। अब इसके कौन से नोट दिया, अब ये बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हुई है, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझते हैं ये फाइनलाइज इसने क्या किया, सिंथेसिस, कंबाइन सोशल मीडिया कैंपेन, ये कहाँ से आया, ब्रांच 1 से, विथ सेलेक्टिव पॉपअप इवेंट। अच्छा, कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया कैंपेन का लिया आपने ब्रांच 1 से, लेकिन मैप किसके से कर दिया आपने, ब्रांच 3 के कंपोनेंट से, या ब्रांच 3 प्रोबेबली, विथ सेलेक्टिव पॉपअप इवेंट्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है। ब्रांच 1 ब्रांच 2, ब्रांच 1 में से आपने एक कंपोनेंट लिया, ब्रांच 2 का एक कंपोनेंट लिया, दोनों को मैच कर दिया। ये आपका अभी इनकम्प्लीट पाथ है, लेकिन एक पाथ बन गया, ठीक है। यूज पार्टनरशिप टू एम्पलीफाई रीच एट द इवेंट। अब जो आप इवेंट कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग आपने की सोशल मीडिया पे, और जो इवेंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके आपने पार्टनरशिप की दूसरे ब्रांड्स के साथ जो कि इको फ्रेंडली है,
ठीक है। अब हर जो बेसिकली ब्रांच थी उसमें एक एक कंपोनेंट था, सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर। देन आपके पास ब्रांच 2 में क्या था, पढ़ लेता हूँ मैं भी, पॉपअप शोज एट इको कॉन्शियस फेस्टिवल और कॉलेज, ठीक है। फेस्टिवल और कॉलेज ये जगह हो गई, और है क्या, पॉपअप शोज। एंड देन थर्ड में क्या था, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या था भाई, विद इको फ्रेंडली ब्रांड्स, ठीक है, कुड क्रॉस प्रोमोट टू अलाइन ऑडियंस। अब आपने पहले में से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को माइनस किया, लेकिन आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग उठा लिया। सेकंड में से आपने कॉलेज और ये इवेंट्स मेरे ख्याल से माइनस कर दिया, और आपने क्या उठाया, फेस्टिवल्स, सही है। और फाइनल में से आपने उसका ब्रांच, जिसको पार्टनरशिप कोलैबोरेशन वाला कंपोनेंट उठा के आपने एक पाथ बना दिया जो आपको लगता है कि यार आपके बिजनेस के हिसाब से इम्पैक्टफुल है, ठीक है। लेकिन तीनों में देखा आपने कि ब्रांच 1 का कॉन्सेप्ट अलग था, ब्रांच 2 का अलग था, ब्रांच 3 का अलग था। लेकिन ऑप्टिमम पाथ क्या हुआ, ब्रांच 1 का एक कंपोनेंट, ब्रांच 2 का एक कंपोनेंट, ब्रांच 3 का कंपोनेंट। जरूरी नहीं है तीनों ब्रांचेस में से कंपोनेंट है। लेट्स सपोज 5 ब्रांचेस हैं, आपने किसी 2 ब्रांच से ऑप्टिमम पाथ बना दिया, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ट्री ऑफ थॉट्स में साइमल्टेनियसली एकदम 3 पाथ्स, 4 पाथ्स, मल्टीपल पाथ्स जनरेट होते हैं आपके क्रिएटिव प्रॉब्लम या ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसके मल्टीपल पाथ वाकई में पॉसिबल है। और फिर उसमें से आप एनालाइज करते हैं और आप अपना बेस्ट ऑप्टिमाइज पाथ चूज करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है ट्री ऑफ थॉट्स इन्वॉल्व जनरेटिंग मल्टीपल रीजनिंग ब्रांचेस टू एक्सप्लोर डिफरेंट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, evaluating each and synthesizing the best idea into the final answer, सही है। evaluating each and synthesizing the best idea into a final answer. Each branch represent a distinct approach. Social media marketing, pamphlet marketing, on-site marketing, different approaches हैं, सही है। Which is explored, assessed based on pros and cons and scored. वो आपने assess किया, उसको score दिया। This method is ideal for complex ओपन एंडेड टास्क लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, टास्क ओपन एंडेड होना चाहिए, मतलब मल्टीपल उसके सॉल्यूशन पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो आपने 2+2 के लिए TOT यूज़ किया तो वो हमेशा उसी पे जाएगा और उसके पास कोई इतनी ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। बात समझ आ रही है ना, ओके। एज इट इनकरेज क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन एंड सिस्टमेटिक कंपैरिजन एज शोन इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जाम्पल होगा, वो हमने पढ़ लिया, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब आ गए भाई अप्रोचेस, हमने मोस्ट मोर और लेस पढ़ ली सारी, सही है। एक मरतबा इसको रिपीट कर लेते हैं। जीरो शॉट, फ्यू शॉट, जोर से बोले, जीरो शॉट, फिर 1 शॉट, फिर फ्यू शॉट, देन कॉन्टेक्स्ट पंपिंग, देन और फिर उसके बाद फिर TOT, सेल्फ कंसिस्टेंसी, फिर देन एंड देन TOT, सही है। मोर और लेस एडवांस टेक्निक हमने पढ़ ली। किसी का सवाल है या नहीं है? प्रैक्टिकल करवा, मुझे एक बात बताएं, ये घर जाके आप AI से प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल इसमें नहीं दी, हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। अगर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो जाहिर सी बात ये एग्जाम्पल यूज़ करके करवाऊंगा। मैं आपसे एग्जाम्पल क्यों पूछ रहा हूँ? WSL पर जो मैंने बताया था वो डेवलपमेंट के लिए था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या लागू होगी? LLM से बात करते हुए। तो WSL में जो मैंने बात की थी वो क्या था? डेवलपमेंट, जो मैं कोड लिखूँगा। इस कोर्स के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर कोड नहीं है। ज़्यादा जो हमारा काम है वो किससे रिलेटेड है? अप्रोचेस, जनरलाइजेशन, कैटेगराइजेशन, थियोरटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक, थ्योरी है, ठीक है। जितना भी अभी आप पढ़ेंगे ना इसमें मोर और लेस सब थ्योरी है। अब इसमें आप जितना खेल सकते हैं आप, मैं यहाँ पे ये पहले सवाल पूछा लेट्स सपोज कि भाई मल्टीपल आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, तो वो तो कोड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप क्या करेंगे? LLM को जाके बोलेंगे, LLM आपको उसका आंसर दे देगा, सही है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई LLM को डेटा जो फीड करना है उसका डिफरेंट अप्रोचेस क्या है। बात समझ आ रही है? कोड से रिलेटेड तो नहीं है ना ये, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, इसको हैंड्स ऑन करना है क्या? अगर करना है तो नेक्स्ट क्लास से हैंड्स ऑन कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है यार, जितना हम डिस्कस करके शायद सीखते हैं, हैंड्स ऑन तो आप घर जाके भी कर सकते हैं। कोड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़े। जब आप पढ़ने बैठेंगे खुद ही खेल सकते हैं। अब लेट्स सपोज
अगला टॉपिक कुछ उसमें आएगा इमेज प्रॉम्प्टिंग का। तो उसमें जब मैं भी पढ़ने बैठा था तो हम आपस में हमने क्या किया, एक दोस्त की इमेज उठाई और प्रॉम्प्ट देके उसको टेढ़ा मेढ़ा करके देख रहे हैं। तो वो जितना आप खुद से खेलेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। सही, आगे चलते हैं। बेस्ट हाँ पूछो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे लिए सर क्यों जरूरी है आगे एजेंटिक एआई के लिए? हमें मतलब इसमें इतना डीप डाइव करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? क्यों? अच्छा सही, कोई बताएगा इसका आंसर? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? नहीं फिर फ़ायदा क्या? फिर सवाल ही क्यों पूछा? मुझे टेस्ट कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे नहीं बैठो। कोई बताएगा भाई को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है और इसके लिए अलग से क्वार्टर क्यों डेडिकेट कर दिया? पूरा क्वार्टर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बता दो भाई, क्या हो गया? नहीं बता सकते बेस्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाने के लिए। क्यों हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू कोड? कोड में नहीं कर हाँ, बताएं रहे, आप। प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। सर कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे, थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वो पूछ रहे हैं। Indian people, AGI will be replace the agentic AI also. And at the time, all the present skills will be devalued. And only one skill that will be lost forever, that is the prompt engineering. Because you have to ask the question to get the answer from the AI. You have to command, you have to tag only one skill that will be forever in this era of AGI, which will be, I think, in 2 or 3 years, that will be in our use. And the only skill that will be forever, that is the prompt engineering. Regarding all the skills like that, is coding. Right now, coding has replaced by the agentic AI. There are so many agents software that are completely doing the best work for the coding. There is no need of a person that he has to learn and just to take the thing in his mind and mathematics, etc. No need. All the things are done easily by the artificial intelligence. So the only skill that will be forever, and this is the basics of AGI, agentic AI and AI. That is the prompt engineering. जी बैठ। उन्होंने एटलीस्ट इंग्लिश में कोशिश किया मैं समझाने की, तो अच्छी बात है यार, आप लोग मुझसे कोशिश करें। अब उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, अगर आपने रीसेंट मार्केट देखा हो, हमने अभी लास्ट क्वार्टर में क्या पढ़ा था? ओपन एआई एजेंट एसडीके कोड कर रहे थे। ओपन एआई ने प्रोबेबली आई थिंक अक्टूबर के अभी स्टार्ट में मिड में अपना एजेंट किट निकाल दिया। वो क्या है? नो कोड एजेंटिक सिस्टम बिल्डर। सही, कोड लिखने की ज़रूरत है? नहीं। अब एजेंट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एजेंटिक सिस्टम बन गया। एजेंट को आप पास क्या कर रहे हैं? प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं। सही है। होल जो एजेंटिक सिस्टम है उसको क्या पास कर रहे हैं? कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट। सही है। हर जगह यूज़ क्या हो रहा है? प्रॉम्प्ट। अगर आपने लास्ट क्लास अटेम्प्ट की होती तो उसमें हमने डिस्कस किए थे 7 पिलर्स जो सर जिया ने रिकमेंड किए हैं। उसमें यह है यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज आपकी होगी मार्कडाउन। अब आपको पाइथन पढ़ने की नीड है, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको अभी मैं कहूँ कि यार पाइथन में एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखो, तो क्या आप खुद से लिखेंगे जीपीटी के पास जाएंगे? जीपीटी के पास। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार जावा के अंदर लिखो, जीपीटी के पास। C# में लिखो, अब आप लिख सकते हैं। आप क्या हो गए? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गए। आपकी एक लैंग्वेज हो गई यूनिवर्सल, कौन सी? इंग्लिश फॉर नाउ, इंग्लिश फॉर नाउ जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोड लेवल या कोडिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे तो फिर हम मार्कडाउन यूज़ करेंगे। सही, मार्कडाउन भी अगेन उसमें आप क्या लिख रहे हैं? इंग्लिश। लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिससे एलएलएम को पता होगा कि यार आप किसको ज़्यादा एम्फेसाइज करें, किसको कम एम्फेसाइज करें, बेस्ड ऑन हेडिंग टैग्स, बुलेट पॉइंट्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब जब हर जगह आपकी इंग्लिश यूज़ हो रही है, आप कमांड दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं कि कमांड प्रॉपर कैसे लिखना है ये आपको बताओ? एलएलएम एक जो ना प्रेडिक्शन इंजन है, ठीक है?
वो आपके फीलिंग, आपके कमांड को तब तक प्रॉपर नहीं समझेगा जब तक आप उसको प्रॉपरली ना समझाएं। उसको समझाने के लिए टेस्टेड टेक्निक्स हैं जो कि इस कोर्स का पार्ट है और वो पार्ट है, ठीक है। जब हम कोड जनरेशन भी करते हैं ना, मिसाल के तौर पर कुछ कोड लिखना है, तो अगर आप ये अप्रोचेस यूज़ करेंगे ना तो आपका आउटपुट कदरे बेहतर होगा कंपेयर टू जब आप रैंडमली कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं और मैं जाके एलएलएम को लिखूँ क्रिएट अ ब्यूटीफुल यूआई डिज़ाइन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो एलएलएम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कोड लिख देगा। लेकिन अगर मैं जाके वायर फ्रेम का रेफरेंस लूँ, ठीक है, 2-3 मैं डिज़ाइन उठाऊँ और उसे पेस्ट करूँ, उसे कहूँ कि यार इसको रेफरेंस में रखते हुए अब तुम मेरा यूआई डिज़ाइन बनाओ, तो ये प्रॉम्प्टिंग की कौन सी एग्जांपल होगी? फ्यू शॉट हो गई। 3 से 5 एग्जांपल हमने दी और फिर हम एलएलएम को कह रहे हैं कि अब करो। तो ये जो ग्राउंड जो हम बना रहे हैं ना, वो ये बना रहे हैं कि आपको सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रॉपरली देनी है ताकि आपका आउटपुट प्रॉपर है। बात समझ आ गई? बहुत लंबी तमहीद बनवा रहे हैं आप लोग यार। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। इसमें क्या है भाई, एक लिखा हुआ है राइट अबाउट डॉग्स। ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ऑब्वियसली। राइट अबाउट डॉग्स, डॉग्स की बहुत सी ब्रीड्स हैं, ठीक है। रोड वाला चाहिए, पालतू चाहिए, जो भी है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल क्या है? राइट अ 3 words इंफॉर्मेटिव आर्टिकल अबाउट द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ओनिंग अ डॉग, फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल कनेक्शन, इतने सारे फ़वाइद हैं। यूज़ अ फ्रेंडली एक्सेसिबल टोन फॉर जर्नल रीडर्स, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, पहले में सिर्फ ये लिखा हुआ है फना डॉग के बारे में लिखो, दूसरे में आपने बताया कितना लिखना है, ऑडियंस क्या है, टोन क्या होनी चाहिए और क्या लिखना है, ठीक है। स्पेसिफिक हो गए आप, ये चीज़ है। देन यूज़ एक्शन वर्ब्स। ये कह रहा है भाई बी एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट यू वांट एआई टू डू, यानी आपको यूज़ करने हैं एक्शन वर्ब्स। इसमें है एनालाइज, कंपेयर, क्रिएट, डिस्क्राइब, इवेलुएट। अच्छा, इसी में यार कहीं पे लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि यार सर्टेन वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। लेट्स सपोज प्लीज़ यूज़ नहीं करना, सही है, और एडवाइस यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपको एडवाइस की जगह पे आई गेस यूज़ करना है लेट्स सपोज सजेस्ट, इस तरीके से कुछ था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्ड है एक्सट्रैक्ट, जनरेट, लिस्ट, रैंक, समराइज, ट्रांसलेट, राइट, एक्सप्लेन, क्लासीफाई, ठीक है। ये एक्शन वर्ब्स हैं, ये आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड होपफुली पूछा जाएगा। देन प्रोवाइड एग्जाम्पल व्हेन पॉसिबल, सही है, जहाँ पॉसिबल हो एग्जाम्पल प्रोवाइड करें, सही। अब ये चीज़ हमें पता है कि यार अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहाँ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पाइथन का कोई कोड जनरेट करवाना है तो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, लाजमी है देना, सही है। ओह नहीं गलत बोला, जहाँ हमें यूआई का कोड जनरेट करवाना है वहाँ एग्जाम्पल देना ज़रूरी है ताकि एलएलएम उस लेट्स सपोज आपकी थिंकिंग या आपके ब्रेन को बेसिकली फॉलो कर सके, सही। क्या मैं इस तरीके की यूआई चाह रहा हूँ। देन है स्ट्रक्चर योर प्रॉम्प्ट, यूज़ क्लियर फॉर्मेटिंग। इन्होंने तरीका बताया कि भाई पहले टास्क लिखो, फिर कॉन्टेक्स्ट दो, फिर फॉर्मेट यहाँ पे बताओ, फिर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, व्हाटएवर। ये किसने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। फिर है यूज़ इंस्ट्रक्शंस ओवर कंस्ट्रेंट, ये अच्छी चीज़ है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये है बेटर, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल समराइजिंग द की पॉइंट्स फ्रॉम आवर मीटिंग। अब इसका वर्जन दूसरा क्या, राइट एन ईमेल बट डोंट मेक इट टू लॉन्ग और टू फॉर्मल और टू डिटेल्ड। ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, इसकी बजाय क्या होना चाहिए, ये करो, ये करो और ये करो, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव ज़्यादा यूज़ करें, क्राइटेरिया डिफाइन करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव कंस्ट्रेंट डिफाइन ना करें। देखो किसी सिनेरियो में यूज़ करना होगा कंस्ट्रेंट, जब हम एजेंट को सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार यूज़र अगर इस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर बात करे तो उसे जवाब ना दो, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम एलएलएम को क्या कहेंगे, जब यूज़र ये पूछे तो ये करो, ये पूछे तो ये करो, ये पूछे तो ये करो, सही। और फिर हम आखिर में जाके बोलेंगे कि यार अगर इन क्राइटेरिया से बाहर पूछे तो फिर जवाब नहीं देना। मेक सेंस, ठीक है। देन है कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट। अब ये क्या है, स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ यू वांट दिस रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज़, एलएलएम से हम मोस्टली बात करते हैं इंग्लिश में
और हम उससे LLM मोस्टली जो जवाब देता है वो किस में देता है, टेक्स्ट में। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप कोड का सवाल पूछेंगे तो ऑब्वियस है वो उस कोड सिंटैक्स में जनरेट करके देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि भाई लेट्स सपोज आप डेटा एनालिसिस करवा रहे हैं तो आपका आउटपुट का फॉर्मेट मे बी CSV हो सकता है, सही है, मे बी आप चाहें कि जेसन में हो। तो जहाँ पे इम्प्लाई करता है, जहाँ पे लागू होता है, वहाँ पे डिफाइन करें अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कि आपको आउटपुट किस स्ट्रक्चर किस रिस्पॉन्स में चाहिए। ठीक है, हाँ समझ आ रही है या मैं बोर कर रहा हूँ? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिटर्न योर आंसर इज अ जेसन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सही है, इसमें यहाँ पे डिटेल दी हुई है इसकी। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया होगा LLM में, ये मैं रिटर्न या हम नहीं कर रहे, आपकी क्यूरी के बेस पे आप LLM से कहेंगे कि यार फना क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, मगर आंसर किस में दो, जेसन में, CSV में, वट एवर इट इज़। यूज़ वेरिएबल फॉर रीयूजेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या करें कि भाई आप अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है और प्रॉम्प्ट में मुझे यूज़र स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिट करना है, जो आप सबने पढ़ा है डायनामिक इंस्ट्रक्शंस, एजेंट में पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, पाइथन का फंक्शन होता है, वो रिटर्न करता है प्रॉम्प्ट, उसमें हम क्या पास कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे होते हैं, याद ही नहीं है, ठीक है, क्यों पास कर रहे होते हैं, ताकि यूज़र स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डायनामिकली जनरेट हो जाए रन टाइम में, आपको हर मरतबा स्टैटिक प्रॉम्प्ट को चेंज करने की नीड ना हो, सही। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये वही बता रहा है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया एक्सपर्टीज़, फिर यहाँ पे आपने इसको डॉक्यूमेंट टाइप दे दिया, फिर यहाँ पे आपने इंडस्ट्री और कंपनी साइज दे दी। आपके केस में आप समझ लें आप यूज़र का नेम पास कर रहे होंगे, उसकी एज पास कर रहे होंगे, उसकी बेस पे उसको जो भी सजेस्ट कर रहे होंगे, समझ आ रहा है। आइट्रेट एंड डॉक्यूमेंट, अभी क्या कह रहा है, कीप ट्रैक ऑफ व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट। अब अप्रोचेस तो बहुत सारी हैं, हो सकता है आप COT लगाएं आपके पास आंसर सही ना आए, लेकिन आप सेल्फ कंसिस्टेंसी यूज़ करें तो आपके पास अच्छा आंसर आ जाए। अब आप वो डॉक्यूमेंट कर लें कि यार आपके केस में क्या वर्क करा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ डायरेक्टली सेल्फ कंसिस्टेंसी यूज़ करें और आपके पास आउटपुट ठीक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो आपके लिए काम किया आपके स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए, आपको वो डॉक्यूमेंट कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट योर सक्सेसफुल प्रॉम्प्ट, वही जो मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ट वेरिएशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब लेट्स सपोज प्रॉम्प्ट है, सोच के बताएं वेरिएशन किस किस तरह से पॉसिबल है। इस टाइप का प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट किस टाइप का, किस तरह से पॉसिबल है वेरिएशन, क्या चीज़, वापस जोर से बोले थोड़ा सा। कोई भी जर्नलाइज प्रॉम्प्ट ले लें, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक सिनेरियो था, आपने एक प्रॉम्प्ट लिख लिया, उसके लिए उसकी वेरिएशन जनरेट करनी है, तो क्या पॉसिबल वेरिएशंस किस तरीके से मैं जनरेट कर सकता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज डिफरेंट आउटपुट आए या लेट्स सपोज सेम आउटपुट आए, मैं किस तरीके से उसको टेस्ट कर सकता हूँ कि यार मेरे लिए क्या काम है। एक प्रॉम्प्ट आपने 1 घंटा लगा के लिख लिया, अब वो प्रॉम्प्ट दिया, उसके अगेंस्ट में सिंगल आउटपुट आ गया, लेकिन आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि आउटपुट ठीक है, अगर क्रिएटिव सॉल्यूशन है या क्रिएटिव प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ट्राई करनी होगी, इस वेरिएशन के साथ क्या होगा, इस वेरिएशन के साथ क्या होगा। तो आप अपने प्रॉम्प्ट को वेरिएट कैसे करेंगे, डिफरेंट वर्जन कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि सेंड टैग पर मुझे लाइव रिव्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उससे पहले पूछूंगा लाइव रिव्यू भी क्यों नहीं आ रहा, देन जब मैं उसने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी उसको मैं फॉलो करते हुए उसको अल्टर करूंगा और फिर भी नहीं आएगा तो मैं फिर उसको बताऊंगा कि अभी आधी। अच्छा, कंटिन्यूस कन्वर्सेशन नहीं है, एक प्रॉम्प्ट है जो मेन प्रॉम्प्ट है, उसी की वेरिएशन की बात करें, डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करेंगे। एक तो ये हो गया, और भाई पहले COT से प्रॉम्प्ट लिखा, फिर सेल्फ कंसिस्टेंसी वाला लिख लिया, फिर रिएक्ट अप्रोच पे लिख लिया, डिपेंड करता है ना, मैं खाली ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से वेरिएट, सिंगल शॉट को फॉलो कर लिया, रोल प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक को फॉलो कर लिया, इस तरीके से मैं डिफरेंट वेरिएशन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वो प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ गया, इसके अलावा नहीं, और सोचो, अभी तो सब पढ़ा है यार, क्या हो गया। अगर मैं मॉडल की सेटिंग अल्टर करूंगा तो जो प्रॉम्प्ट दूंगा डिफरेंट आउटपुट नहीं आएगा, ये वेरिएशन है। प्रॉम्प्ट ये लिखा, टॉप P की वैल्यू ये थी, T की वैल्यू ये थी, उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स आया, प्रॉम्प्ट वही है, T की वैल्यू रिड्यूस कर दी या ज़्यादा कर दी, अब जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, वो डिफरेंट वेरिएशन। मेक सेंस। इस तरीके से मैं प्रॉम्प्ट की, अपने एक सिंगल प्रॉम्प्ट की डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकता हूँ, सही है। ये कवर करना है या
ख़त्म करें बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कॉमन पिटफॉल्स हैं, देन हमारे पास क्या है, हैंड्स ऑन एग्जाम्पल है। अच्छा एक काम करेंगे यार, आपने रिक्वेस्ट की है ना, यहाँ पे हैंड्स ऑन एग्जाम्पल है, तो लास्ट क्लास, अगली क्लास में हम ये कवर कर लेंगे, सही।